Hello guys, I am Bhupinder Singh from SDS Public Senior Secondary School, English teacher. Today I am going to teach you A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a well-known poem written by the famous romantic poet John Keats. It is an excerpt from the poem Endymion, a poetic romance. The poem is based on a Greek legend. The poem starts with the remark that a thing of beauty is a joy forever. It transcends time, it will never fade away. Beauty has the power to remove darkness and negativity and helps us survive when there is a dearth of noble nature or when one is surrounded by evil. It has a positive impact on one's health. It helps one get sound sleep. Moreover, it highlights the fact that beauty is not only physical but also spiritual and seems to flow down from heaven as an immortal drink made for man. There is something beautiful that connects us with a flowery band that binds us to the mother earth. The beautiful things helps us to keep our despair and sorrows away. The poet knows that life on this earth is a tale of grief and sorrow. There is terrible lack of truly noble hearts, but it is a beautiful thing that alone takes away the gloom of the human heart. The joy given by beautiful things removes the pall of despair from our hearts. Actually, a thing of beauty in the poet believes that beauty is intransient and gives us the same pleasure again and again. It provides us with eternal joy and never fades away. A Thing of Beauty belongs to the romantic genre. The poem is written in rhyming couplets and the rhyme scheme is AABB. There are three stanzas in which this poem is divided. In the first stanza, the poet talks about the joy which is existed forever and its loveliness increases. It never passes into nothingness, but will keep a bower quiet for us. Means it is like a poem. And in second stanza, let's talk about nature. Nature is full of beautiful things. We have the sun and the moon. There are big and small trees that give cool shades for simple sleep. The daffodil flowers are very charming in the green world. In addition to this, there are clear streams that flow through a cool tunnel in summer are examples of beauty in nature. There are musk roses that bloom in forest. In fact, in second stanza, the poet describes beauty of nature in a beautiful manner. And in third stanza, the poet says
that the great thoughts of the dead persons and age old tales are beautiful because they also give us comfort and joy. These tales are an mortal fountain of endless joy. They are like the heavenly drink offered to we human beings. The poet compares the beautiful things to the fountain of elixir in heaven, which flows continuously, giving immortality to us all. In this poem, the poet describes each and everything in a well manner. In this, the poet not only praises the beauty, but he gives examples also. And on the basis of those examples, he proves his words. अगर पहले स्टेंजा की बात करें तो कहता है कि एक खूबसूरत वस्तु, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमेशा आनंद देती है और जिसकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती जाती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि हमारे लिए एक बॉवर की तरह काम करती है। और वो बॉवर हमें शांति प्रदान करता है और एक मीठे सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करता है और स्वास्थ्य देता है और एक संतुष्टि की सांस प्रदान करता है। सेकंड स्टेंजा में कहता है कि इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। ये खूबसूरती की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंधकार के जो पाल हैं उनको दूर कर देती हैं, हमारी अंधेरी आत्माओं से उस अंधकार के पर्दे को हटा देती हैं। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल उसने इस नेचर से लिए हैं, जैसे कहता है कि सन, मून, ट्रीज़, ये हमारे लिए एक वरदान के समान है। जैसे कि एक साधारण फॉर सिंपल शिप, क्योंकि एक साधारण भेड़ भी जो है, चाहे वो हमारे डेफोडिल के फूल हों जो उस हरे भरे संसार में उस बगीचे के हिस्सा होते हैं, उस बगीचे में पैदा होते हैं, चाहे हमारी वो क्लियर रिल्स हों, छोटी छोटी नालियाँ जो जंगलों के बीच पहाड़ों में बहती हैं और गर्मी के मौसम में गर्मी के अगेंस्ट हमें एक ठंडक प्रदान करती हैं। और चाहे वो मस्क रोजेज़ हों जिनके अंदर जो खिलते हैं तो वो महक प्रदान करते हैं, जिससे न केवल हमें आनंद की प्राप्ति होती है बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। और थर्ड स्टेंजा में कहता है कि ऐसे ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स मीन्स वैभव कि ऐसे डूम्स, ऐसे गुंबद, वो महान मोते जिन्हें हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, और वो सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने पढ़ी और सुनी और कभी ना ख़त्म होने वाला वो इमोर्टल ड्रिंक का फाउंटेन जो हमारे ऊपर हेवन की ब्रिंक से, हेवन की ब्रिंक मीन्स उस स्वर्ग के किनारे से लगातार गिरता रहता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। वो सब, ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। और कहता है कि यही चीज़ें हमें आनंद प्रदान करती हैं, संतुष्टि प्रदान करती हैं, यही खूबसूरती को और बढ़ा देती है।
और कभी भी ख़त्म नहीं होती। Whether therefore every tomorrow are we reading a flowery band to bind us to the earth। कहता है कि प्रत्येक आने वाला कल, प्रत्येक आने वाली सुबह, नेक्स्ट डे, टुमारो, हर एक सुबह हमें इस पृथ्वी के साथ बांध के रखती है। और इन सभी निराशाओं के बावजूद, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and other darkened ways। कहता है कि निराशा के बावजूद, उन अमानवीय कुकृत्यों के बावजूद, उन अंधकारी के, उदासी के दिन और वो अस्वास्थ्य या और दूसरे जो हमारे अंधेरे रास्ते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमने अपनी खोज से पैदा किए हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कुछ खूबसूरत चीज़ें हमारे उन पर्दों को दूर कर देती हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी अंधेरी आत्माओं पे छाए हुए हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बूम। और इसी प्रकार जो ट्रीज़ हैं, चाहे वो यंग हैं चाहे ओल्ड हैं, वो हमें एक वरदान के रूप में मिले हैं, एक वरदान की तरह प्राप्त हुए। कहते एक सिंपल शीप, एक साधारण भेड़ भी, और कुछ ऐसे नरगिस के फूल जो उस हरे भरे संसार में, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्रियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड में। जो उस हरे भरे संसार से, हरे भरे संसार में वो डैफोडिल के फूल जन्म लेते हैं, वो भी हमें खूबसूरती प्रदान करते हैं। और वो छोटी छोटी रील्स, छोटी छोटी नालियाँ, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट प्रे, जो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच पहाड़ों में छोटी छोटी नालियाँ बहती हैं। जब गर्मियों के सीज़न में, गर्मियों के मौसम में जब उसमें से हवा लग के निकलती है तो बड़ी ठंडी ठंडी लगती है, तो उससे भी हमें एक शांति, एक आनंद प्राप्त होता है। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वो फूल मस्क रोज़ वाले जो खिलते हैं तो स्प्रिंकलिंग, छिड़कते हैं हमारे ऊपर उस सुगंध को। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और उन गुंबदों के वैभव, उन कब्रगाह, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, उन शक्तिशाली मौतों को जब हम कल्पना करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जिनकी मौतें हो चुकी हैं, जो शक्तिशाली मौतें मरी, फिर उनके डूम्स, उनकी गुंबदें, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वो सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने पढ़ी और सुनी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और कभी ना ख़त्म होने वाला वो अमृत का फाउंटेन, अमृत का फव्वारा, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, जो हमारे ऊपर हेवन ब्रिंग्स, हेवन स्प्रिंग मीन्स स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर गिरता रहता है, जिसको कभी भी, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। पता ये कहानियाँ अनंत प्रसन्नता की अमर खजाना है। वे हम मानव प्राणियों को स्वर्गीय डिंक प्रदान करती हैं। कभी सुंदर चीज़ों की तुलना स्वर्ग में बहने वाले अमृत के झरने के साथ करता है, जो सदा बहते हुए सभी को अनश्वरता प्रदान करता है। Okay guys, it was your poem A Thing of Beauty. I hope you will get understand better, and we shall discuss next poem or next chapter in next video. Till then, bye, and have a nice day. Thank you.